हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार हम ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, जो आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, this is the first question for today you in the video. In a triangle ABC, P and Q are points on AB and AC respectively, such that PQ parallel BC. Prove that median AD drawn from A to BC bisects PQ. So first of all students, figure ABC as a triangle is drawn. ये है ABC triangle एंड PQ पॉइंट्स है AB और AC पर। Here P and Q are points on AB and AC. And you see AD is the median. ये AD median है। Okay. So suppose and also given PQ parallel BC. Suppose कि median AD जो है PQ को R पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो यू हैव टू प्रूव दैट कि AD मीडियन जो है वह क्या करता है, फ्रॉम A to BC बाइसेक्ट्स PQ। दैट मीन्स PR और QR को इक्वल दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, और गिवन में क्या है, ABC इज ए ट्रायंगल, is a triangle. Okay, P and Q are points on its sides AB and AC, such that क्या है, PQ parallel BC. Okay, AD is a median from A to side BC which intersects PQ at R. To prove यही यही AD PQ को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स PR इक्वल टू QR। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। वेयर वी हैव PQ पैरेलल BC, वी हैव PQ पैरेलल BC। सो दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, angle 1 equal to angle B corresponding angles, therefore angle 1 equal to angle B, okay, and angle 2 equal to angle C, corresponding angles. Now you see the triangle PAR and BAD. In triangle PAR, triangle PAR and triangle BAD, वन एंगल जो है आपका ये PAR, एंगल PAR इक्वल टू एंगल BAD, कॉमन एंगल, एंड वन अनदर एंगल 1 इक्वल टू एंगल, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड है। और यहां से सिमिलर दिखा करके ट्रायंगल PAR को BAD के AA सिमिलरिटी, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो AR बाय AD, देखिए AR बाय AD यह इक्वल होगा PR बाय BD। लिख दीजिए कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
similar triangle are proportional. अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अगेन AQR और ACD में आएंगे. नाउ इन ट्रायंगल AQR and triangle ACD. Okay, so angle 2 equal to angle C or angle QAR equal to angle CAD. Okay, common angle, and the another angle 2 equal to angle C. Angle 2 equal to angle C. Okay, proved से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर AA से, ट्रायंगल AQR, ओके, सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल ACD बाय AA सिमिलरिटी. ओके, और इस आधार पर क्या हो जाएगा, AQ बाय AC corresponding sides of similar triangle are equal, and ratio of corresponding sides of similar triangles are equal, QR by CD. This is equation 2. Now you see AR by AD, okay, PR by BD, and here AQ by AC, okay, AQ by AC. This one AQ by AC, इसके जगह पर आप लिखो AR by AD is equal to QR by CR. इससे क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट साइड ऑल्सो इक्वल. ओके, दिस वन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से क्या आ जाएगा, PR by BD is equal to QR by CD. But BD CD are the equal because AD medians. Since AD is median and median midpoint से मिलता है, therefore D is midpoints of BC, and on this way BD equal to CD. तो आप यहाँ से BD CD कैंसिल कर सकते हो. This implies PR equal to QR, and you see PR equal to QR, you have to prove. So proved, it has been proved. Students, आपने देखा बहुत ही सिंपल मेथड से ये प्रॉब्लम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सिमिलरिटी, नॉट एंगल बाइसेक्टर, सिमिलरिटी का प्रयोग करके इसको हमने प्रूव कर दिया. Another question है question number 2. If the diagonal of BD of quadrilateral ABCD bisect angle B and angle D both, then you have to prove AB by BC equal to AD by CD. First of all हम एक क्वाड्रिलैटरल निर्माण करते हैं, नेम ABCD, एंड गिवन BD को क्या कर रहा है, ओके, बाइसेक्ट कर रहा है. एक लाइन सेगमेंट नहीं बल्कि डायगोनल, और ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी और एंगल D को भी. ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं. गिवन ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD, okay, bisects
angle B as well as angle D. And you see, BD of quadrilateral ABCD bisect both angle B, angle D. प्रूव करना है AB by BC. To prove, okay, AB upon BC equal to AD upon CD. You see, AB upon BC, AD upon CD. First of all, join कर दीजिए. We have to join AC. Okay, construction. Join AC A to C, which meet, okay, और intersect दीजिए, which intersects BD at P. Okay, BD at P. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे प्रूफ में, using angle bisector theorem. Just you have studied angle bisector theorem कि अगर वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट करता है तो वर्टिकल एंगल के सामने का जो साइड का रेशियो होता है वो एंगल बनाने वाले साइड के रेशियो के इक्वल होता है. दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल एबीसी चलेंगे. ओके, बीपी bisector, BP is bisector of angle B. और इस आधार पर क्या हो जाएगा, AB by BC, AB by BC इक्वल टू अपोजिट साइड के पार्ट्स का रेशियो, यानी AP by CP, AP by CP. ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से. फिर ADC में चलेंगे, इन ट्रायंगल ADC. ADC जहां पर DP bisects, DP is bisector of angle D, और इस आधार पर क्या हो जाएगा, AD by CD, AD by CD एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से AP by CP, ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से. Now you just see AP by CP both इक्वेशन में इक्वल है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ क्या हो जाएगा, AB by BC AD by CD के इक्वल. ओके, क्योंकि बोथ इक्वल टू AP by CP. सो AB by BC इज इक्वल टू AD by CD as both are equal to the same AP by CP. Okay, so it has been proved. So just students, you have seen the second question solution as well as first question solution, and in very simpler way. इसमें आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया गया, इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यूज करके हमने आपको. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. ओके, ABCD. E is a point on BC. E is a point on BC, and the diagonal BD, okay, intersect AE at F. This one is F. तो आपको दिखाना है AF into FB is equal to EF into FD. तो स्टूडेंट्स, आप ADF और EBF को सिमिलर कर दो. ये एंगल 1 मान लो,
ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, आपस में 1 और 4 अल्टरनेट हो जाए। ओके, जस्ट यू सी AD और BC पैरेलल AE ट्रांसवर्सल से बना हुआ जो है 1 और 4 है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जाता है। सिमिलरली AD और BC पैरेलल है और BD जो ट्रांसवर्सल है डायगोनल BD उससे 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है वो इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में पैरेलल अपोजिट साइड्स होता है। तो गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, इन द गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ओके, एंड E is a point, on side BC, and AE intersect diagonal BD. AE intersects diagonal BD at F, and you have to prove AF into FB is equal to EF into FB। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आप ट्रायंगल ADF और EBF को सिमिलर दिखा दो AAA क्राइटेरिया से प्रूव, in triangle ADF and triangle EBF क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बनाते हैं? तो AD और BC पैरेलल हैं। एज AD पैरेलल BC एंड AE इज ए ट्रांसवर्सल, तो 1 और 4 बना। AE इज ए ट्रांसवर्सल। अनदर क्या है? 1 और 4 इक्वल हो गया 2 और 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एज AD पैरेलल BC, एज AD पैरेलल BC and BD is a transversal, BD is a ट्रांसवर्सल। तो इस आधार पर आप सीधे भी लिख सकते हो ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBF बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ से जो है रेशियो ऑफ साइड्स यानी AF और BF CF का रिलेशन आ जाएगा। देखिए 1 और 4 है, तो 1 का मतलब आप यहाँ से ही देखो 1 मीन्स, और हमको चाहिए DF BF AF और EF के बारे में, तो AF बाय EF। ओके, सो क्या हो जाएगा? corresponding sides of similar triangles are proportional, और इसके आधार पर क्या हो जाएगा? AF by EF, therefore AF by EF is equal to DF by BF, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ मिलेगा AF इंटू BF इक्वल टू DF इंटू EF, और यहाँ प्रूव करना था AF FB, और चलिए इसको भी बदल देते हैं FB में, और EF
इनटू FD में बदल दिया और यहाँ आ गया हेंस प्रूव्ड आ गया। तो आपने देखा, वेरी सिंपल। और जो है 2 या 3 मार्क्स का 2 मार्क्स में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। जस्ट हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC ट्रायंगल है और साइड AB और AC पर जो है P और Q पॉइंट्स है और इस तरह से है कि AP पर 2 और PB पर 4, यानी ये आपका AP और ये AQ, ये 2 cm, ये नीचे का 4 cm, ये आपका 3 cm, ये आपका 6 cm, ये मिला दिया जाता है। तो है ओके, गिवन क्या क्या है? गिवन है ABC is a triangle in which points क्या है? P and Q are on sides AB and AC, okay, such that AP equal to 2 cm, PB equal to 4 cm, AQ equal to 3 cm और QC equal to 6 cm. To prove BC equal to 3 PQ. Okay, now proof AP by PB equal to 2 cm by 6 cm. Okay, so 1 by 3 and another AQ by AC equal to 3 cm by 6 cm, yani 1 by 3. Now you see in triangle ABC what happens? कि AP by AB इक्वल टू AQ बाय AC, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC हो जाएगा। फिर अब क्या है कि सिमिलर भी हो जाएगा। ओके, नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, as you see PQ parallel BC, so angle APQ equal to angle ABC, क्योंकि PQ corresponding angles आप कह सकते हो corresponding angles as PQ parallel BC. and another क्या है? angle A equal to angle A common, angle A common, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और जो AA से बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और यहां से क्या मिलेगा? AP बाय AB देखिए, AP बाय AB इक्वल टू PQ बाय BC बाय BC। अब देखिए AP और AB, तो AP कितना है? AP जो है वह 2 cm और AB कितना है? ओके, तो AB हो गया 6 cm, 2 cm 6 cm, 2 cm है 6 cm इक्वल टू PQ बाय BC। तो क्या आ जाएगा? ये 2 1 जा 2, 2 3 जाए, तो आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में BC इक्वल टू 3 PQ। दिस इंप्लाइज BC इक्वल टू 3 PQ। ओके, हेंस प्रूव्ड। सो योर स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव सीन दैट कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने जो है दिया गया। तो
स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर डीबी परपेंडिकुलर बीसी। देखिए डीबी परपेंडिकुलर है बीसी पर, और यहाँ देखिए एसी भी बीसी पर परपेंडिकुलर है। ये दोनों तो पैरेलल हो गया, और एक और है डी जो एबी पर परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है क्या, बीई बाय डीई, अच्छा एसी बाय बीसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिखते हैं। गिवन में जो है वह डीबी परपेंडिकुलर बीसी, डीई परपेंडिकुलर एबी एंड एसी परपेंडिकुलर बीसी। जस्ट टू प्रूव क्या हो जाएगा, टू प्रूव में आपका बीई अपॉन डीई इक्वल टू एसी अपॉन बीसी। चलिए प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिखिए डीबी और एसी बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ओके, डीबी भी परपेंडिकुलर बीसी एंड एसी भी परपेंडिकुलर बीसी। तो ये दोनों हो गया पैरेलल, डीबी पैरेलल एसी, और इस आधार पर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। नाउ डीबी पैरेलल एसी है और बी ए एक ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब चलते हैं डीबीई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डीबीई एंड डीबीई, और देखिए 1 के इक्वल 2 है तो b का इक्वल a हो गया, b का इक्वल a हो गया, और b का इक्वल c हो गया। ओके, तो ये हो गया c, और e जो है उसके इक्वल क्या हो जाएगा, e के इक्वल b हो जाएगा। यहाँ पर 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, b और a, b और a, b था तो a लेना था यहाँ। ओके, b का a और यहाँ c। ओके, d का c, d का क्या हो जाएगा, b का c हो जाता है। इसमें e का c, e का c, ये भी मिस्टेक, e का c 90 और b का a, b का a, और यहाँ बच गया a c और b। चलिए यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दूसरा क्या हो जाएगा एंगल DEB, एंगल DEB इक्वल टू BAC यानी ACB, एंगल ACB, DEB और एंगल ACB। ओके, तो ये 90 डिग्री। अब ये दो एंगल बराबर होने से ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल DBE इज सिमिलर ट्रायंगल BAC। ओके, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और देयरफॉर क्या हो जाएगा, BE अपॉन AC। देखिए B अपॉन AC इज इक्वल टू क्या लाना है, BC और DE। ओके, तो DE बाय BC। अब यहां से चेंज करेंगे AC DE का, तो क्या हो जाएगा, BE बाय DE इक्वल टू AC बाय BC। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एक हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, और इनके साइड जो है AB जो है वह बेस है जिनको प्रोड्यूस किया गया। वन साइड इसको P तक प्रोड्यूस किया गया, ये C हो गया, और AC और BC इक्वल है, और
और दूसरा जो है तरफ जो है इसे Q तक प्रोड्यूस किया गया। ऑन द वन वे प्रोड्यूस टू P, अनदर वे टू Q, इसको मिला देते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, अब देखिए क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है ACP अब BCQ इनको सिमिलर बनाना है। जस्ट गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC कौन सा इक्वल है, AC और BC इक्वल है, AC इक्वल टू BC। ओके, साइड AB, साइड दैट मीन्स बेस AB is produced to both sides to P and up to P and Q, okay, such that क्या दिया है, AP into BQ इक्वल टू AC स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल BCQ। अब देखिए, जब दो साइड इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, ओके, टू साइड्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BC, तो दिस एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, AC के अपोजिट का एंगल 1 AC को मान लेते हैं और 2 इसको मान लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब 1 2 इक्वल हो गया तो 180 माइनस एंगल 1 और 180 डिग्री माइनस एंगल 2, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग द इक्वल्स फ्रॉम द सेम आर इक्वल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब 1 जो है माइनस होगा 180 से, तो CBQ मिलेगा, एंगल CBQ, और 180 से 2 माइनस होगा तो CAP मिलेगा। अब ये दोनों इक्वल हो गया, और फिर क्या है, साइड्स, तो साइड्स में हमारा ये AP इंटू, नाउ ये है AP इंटू BQ इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट मीन्स AC इंटू AC। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP और बाय AC, AP बाय AC इक्वल टू AC बाय BQ। AC को चेंज कर सकते हैं BC से, तो क्या आएगा, AP बाय AC इज इक्वल टू, AC चेंज किया BC बाय BQ। अब चलेंगे PAC और QBC, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCQ। तो इसमें कौन कौन सा एंगल मिला, ये देखिए, ACP यानी CAP एंगल CAP इक्वल CAP और CBQ एंगल CBQ प्रूव्ड अबव, देखिए प्रूव्ड से। और ये साइड देखिए AP बाय AC, ओके, AP बाय AC, दैट मीन्स हम ये कर सकते हैं AP बाय BQ, AP बाय BC, ओके, AP बाय, या इस तरह से AP बाय AC, AP बाय AC, AP बाय AC, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC बाय BQ। आप देखिए ये एंगल इक्वल, और साइड जो एंगल बनाने वाला साइड है यानी AP बाय AC
इक्वल टू CBQ बनाने वाला साइड यानी BC बाय BQ, दैट मीन्स ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल BCQ, ओके, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस तरह से कि 1 to 6 प्रॉब्लम्स को हमने इस वीडियो में डाला, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो प्रोबेबली दे मे बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और आप अपने मेहनत को जारी रखें। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।